in Okay. graduation, I had completed BBA. This meeting is being recorded. Okay. So, Um, college you have done MBA? I had sorry, From which college you have done MBA? sir, I had completed from Graphicra Hill University, Dehradun, Uttarakhand. Okay. And are you working somewhere? Sir, I am working in BYJU'S as an academic counselor, Okay. but unfortunately, I'm not selected after ETP program because there is two criteria. One is sale of 70,000, where I had done two sales of 75,000 and 55,000. But another criteria is you have to meet the teacher and the student. We have to take a Zoom sessions around 15, but due to some auditing and some glitch in some audios and some videos, I had completed only 13. That's why I think they will not take me to the business development associate role. Uh, they told me that they have database in their account, in their systems. They will tell me if there is some another vacancies regarding those. And after 90 days, I'm further eligible for that once again. So as now I'm uh, working as a BYJU'S as a ATP applicant trainee program. After that, I will be promoted to business development associate. Okay. So on that day you're giving. Basically, it is sales profile. Yeah, sir. It is a sales profile only. Okay. So on that day also you given the assessment test, right? Uh, sir, yes, I had given. Yeah. So here is your scorecard. You had got your score good in job as a speculator and hedge fund operation. Your overall score is 65%, but you have to work on banking and insurance as well, equity and financial advisories and investment banking as well. So your overall opinion is average. So this is your overall scorecard, which you will receive on your WhatsApp as well. And I want to ask you that, are you looking for core finance job? Yes, sir. I'm looking for a core finance job. Can you, sir, explain me this scorecard? I'm not getting that scorecard. How to read that scorecard? Okay. Hi, Visible? Paras. This is Vishal sir here. How are you doing? Uh, Good, sir. Thank you So this for scorecard bringing me says here. that you have got 65% overall. Okay. And you have got Okay. wrong answers in private equity, in financial advisor, in investment banking, and in banking insurance. So you have to work hard in that. And जहाँ पे 100 मिला है, that answers you have given right in that domain. Okay. Okay. So I think you need more knowledge about advisory, more knowledge about mergers and acquisition, more knowledge about how does equity work. All that can be very crucial for you. Okay. Yes. So I think you are working already in finance, but you are working in sales, and now you want to go into core finance. So let me just ask you a few questions, whether you are eligible for it or not. So first of all, how much percentage did you got in your graduation? Sir, in MBA, I got 73.1%. Okay. And how much is the fees of the college? Fees is around 4-5 lakh. So, but they didn't give you any core finance job. No, sir. Basically, there is uh, a crisis after 2020 Corona. There is some lockdowns, Oh, but there are and many the jobs available with other colleges and everywhere. So maybe 5 lakh you paid for a college. So that was too much. yes, sir. After that, sir, I had sir. There is a company like same BYJU'S, Square Yard, Lido. The only tech companies are those who are looking for a coal sales only. There is a visit for banking like LDFC and ICICI, but they are not coming. One of them is like Bandhan Bank is there. They need overall 7% criteria. So that's why I am out from that criteria.
I'm not able to join a single relationship officer that is And are you also okay to of travel sales. outside Dehradun? Sir, basically, Dehradun, I'm not from Dehradun, I'm from Haldwani. Dehradun is a city in Uttarakhand. So are you okay to And travel in other cities? yeah, sir, I'm okay. After that, sir, I had completed, I had taken, given an exam for ICICI PO as a provisionary officer, where I had got a chance to be a part of Manipal University. Mm-hmm. Hello? Yes, listening. Yes, sir. But due to some financial issue, I am not able to join that course because I had already paid 9 to 10 lakh rupees in my BBA, and after that, I had also given 5 to 6 lakh or approx 7 to 8 lakh for other in finance in MBA. So approximately I had invested over 15 lakh around in my graduation portion. After that, they are asking me for around 3.5 lakh more for provisionary officer in ICICI Bank. They give me a role of assistant manager or deputy manager, where the role is same after doing 1 year course in banking and financial diploma. They are giving me a diploma in banking and financial. But do you want to Uh, work in that field, Paras? In banking? Sir, banking is all around sales and relationship. Or you want to go into the core finance, which I explained to you that day, investment bank, hedge funds, and all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I want to be in core finance job, but there is a problem, sir. I'm not able to decide myself which field I have to go because I had completed my 11th, 12th in PCM. After that, I choose in BBA in commerce. Then Okay. I continue my studies after BBA, then MBA. Okay, so I think So more than 15 lakhs you have spent and there is no returns. yes, sir. ROI is negative. So now who are there in your family? Family, my brother, I'm elder son. There is my father is in army and he's NSG commando, and now it is retired in 2001 or two. My mother is an housewife, and my younger brother is in college somewhere in Noida, doing CS computer science. So do you really want a job, Paras, into core finance? How Yes, much sir. package do you expect? Sir, I'm not. The package is for the skill set, but I'm not here for. I'm not fulfilled from any skill now. I am expecting the best in So the core between area. मतलब 4 से 6 लाख is okay, right? Yeah, sir. That is okay for the fresher graduate. So कॉलेज में कुछ सिखाया नहीं वो लोग ने? पढ़ाई वढ़ाई, इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, ये सब डेरिवेटिव्स वगैरह कुछ भी पढ़ाया भी नहीं? Sir, basically the college are shut down. They teaches us like um, in online formats, but बंद they हो गई give us कॉलेज? assignments. Yes, sir. कॉलेज इज क्लोज्ड राइट नो? No, sir. I had completed in 2020. Okay, now but you paid 7 lakhs, right? But you're saying Yes. only online education हुआ. No, sir. Basically, education is we got full classes for derivatives, equities market, financial market. Everything is online, but exam is offline. Only Okay. exam is offline. See, there are a lot of studies which could not happen और बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई है. तो आप ओरिजिनली कहाँ से हो? देहरादून से ही हो? घर पे आप हिंदी बात करते हो? हाँ सर, हिंदी बात करते हैं. ओके, तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई है और बहुत सारी चीजें 11 टू टीवाई के बीच में भी, जैसे कि अगर आपको कोर फाइनेंस जॉब चाहिए तो आपको टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा. फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होती है, जैसा हमने उस दिन बताया वेबिनार में, जैसा आपको समझा रहेगा. ठीक है पारस? दूसरी चीज, आपको कम्युनिकेशन पे भी काम करना पड़ेगा. यू नीड टू बी वेरी गुड इन योर कम्युनिकेशन, द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक, नॉट ओनली वर्बल बट नॉन वर्बल एज वेल.
ओके, सो ये सब चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग करना जरूरी है। हम अक्सर बीबीए के पीछे भागते हैं क्योंकि एक सर्टिफिकेट मिलता है, हम एमबीए इसके लिए करते हैं क्योंकि सर्टिफिकेट मिलता है, बट फिर सिर्फ सर्टिफिकेट से जॉब नहीं होती, हमें स्किल सेट और पर्सनालिटी पे भी काम करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो आपने 15 लाख रुपए डाले और आपको रिटर्न्स नहीं मिले क्योंकि कुछ काम ही नहीं हुआ है, कुछ पढ़ाई नहीं हुई, कुछ प्रैक्टिस ही नहीं हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं सच यस बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। आप मतलब मैं नहीं चाहता कि आप और टाइम और पैसा और बर्बाद करो, समझ रहे हो? सो मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपको जॉब एमबीए फाइनेंस के उससे कैसे मिले। तो एक ही सोल्यूशन है जो मुझे दिख रहा है पारस, जहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने आप उस दिन बात की थी, एक कोर्स है मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और हेज फंड का, जिसके बाद 100% गारंटी आपकी जॉब हो जाएगी मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद या दिल्ली में। ठीक है, ये 4-5 सिटी पर 3 महीना आपको रिगरस पढ़ना पड़ेगा, जो जैसा मैंने उस दिन पढ़ाया था वैसा ही। जी सर। ठीक है, तो ये 30 जुलाई सर को बैच चालू हो रहा है। 30 जुलाई, ठीक है सर। सर मेरे को बेसिकली ये हुआ कि मैंने 2020 में सेल्स की जॉब आ रही थी, फिर मैंने, मेरे मामा खुद सीए हैं, मैं उनके साथ लगा वहाँ जीएसटी इनकम टैक्स और ये सीखा मैंने। कुछ खास समझ नहीं आया मेरे को, क्योंकि सर उसमें क्लाइंट बनाना होते हैं और वो क्लाइंट बनाना, उसके बाद जीएसटी फिल करना और ये सब, ये चीज़ें मेरे को समझ ही नहीं आया। उसके बाद मैंने, क्या है कि उत्तराखंड की तैयारी कर ली थी, पीसीएस की और इसकी, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं। तो इसमें 100 में से मेरा 60-50 के अराउंड ही चल पा रहे थे नंबर, क्योंकि मैंने हिंदी पढ़ना शुरू करा, हिस्ट्री जियोग्राफी ये सब पढ़ना शुरू करा, 50-60 के अराउंड आ पा रहे थे, जबकि 75-80 के अराउंड चाहिए थे नंबर। तो सर मेरा 1-1.5 साल वहाँ चला गया। उसके बाद फिर तो अभी एज ऐसे क्या हो करके, गई है, 24-25? सर 24 ऐसा 25 हो जाएगी अभी अगस्त के में। फिर अभी आगे और 2-4 साल वेस्ट करना है कि अभी अच्छा कुछ चाहिए? सर अच्छा चाहिए। बेसिकली मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मतलब कैसे, जैसे सर एक्सेल में भी हाथ इतना अच्छा नहीं है, एसक्यूएल में भी नहीं है, पिवट टेबल भी नहीं आती। तो सर वो चीज़ें हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें ये हो जा रही। एसक्यूएल सीखने की कोशिश करी, वो एसक्यूएल में फिर पर तुम कोड। बहुत कुछ सीख रहे हो पारस, देखो हर चीज सीखना में इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सीखना है, थोड़ा बहुत एक्सेल सीखना है, जिसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग भी इसमें सिखाया जाएगा, इसमें अकाउंटिंग भी सिखाया जाएगा। जैसे ही 3 महीने हो जाएंगे पारस ये कोर्स में, आपकी जॉब हो जाएगी इन्वेस्टमेंट बैंक या हेज फंड में 4 से 6 लाख की, और आप 2-3 साल जॉब करो, फिर आपका सैलरी बढ़ेगा। ये जी सीधा रास्ता है। आप इधर उधर हाथ पैर मारते रहोगे, 4-5 चीज करते रहोगे तो एज निकल जाएगी, और एक बार एज निकल जाती है तो जॉब नहीं मिलती बाद में। आपको भी जी पता सर। है, वो पूछेंगे 18-20 का एमबी हो तो 21-22 क्या किया। आज शायद आंसर कर पाए, 2024 में आंसर नहीं कर पाएंगे कि 20 से लेके 24 तक क्या किया। यस सर। अभी कोविड के बहाना देख के मैं आपको कई कॉर्पोरेट में लगवा सकता हूँ ये कोर्स के बाद, बट उसके वैसे डिफिकल्ट हो जाएगा 1-2 साल के बाद। तो ये 30 जुलाई वाला बैच आप शांति से कर लीजिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीना प्रॉपर पढ़ाई होगी जो कॉलेज में नहीं हुई है। ऑनलाइन लाइव लेक्चर होंगे, वीडियो ऑन रख के, जैसा उस दिन का लेक्चर आपने देखा रहेगा कैसे 250 लोग पढ़ रहे थे, तो वैसे ही 4 महीने की पढ़ाई होगी। और इसकी फीस सिर्फ 25,000 रुपये, जो 15 लाख के हिसाब से सिर्फ उसका 2% है, 25,000। तो दो जी परसेंट का रिस्क आपको लेना है, आपने 15 लाख डाले तो आप ऐसा सोचिए 15 लाख, 15.25 लाख डाले और 25,000 का एक आप फाइनल शॉट दीजिए, और इसमें पूरी मेहनत करिए, और 4 महीने बाद मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपकी जॉब करवा दूंगा। पर मेरे साथ पढ़ाई सर। करनी पड़ेगी 3 महीने। सर ये 25,000 इंक्लूडिंग जीएसटी है या आउट ऑफ जीएसटी है? इंक्लूडिंग है। इंक्लूडिंग 25,000 है। हाँ। सर 3 साल का कोर्स, 3 महीने का कोर्स रहेगा ना सर ये? हाँ, जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। अभी सिर्फ 2,000 पे करके सीट बुक करनी है। 2 दिन है आपके पास, आज और कल, सोचने के लिए, क्योंकि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं तो हम संडे के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे। बाकी के 23,000 आपको कोर्स चालू होने के बाद 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। जी। सर स्टार्टिंग कैसे होगी सर, सा आप मेरे को ब्लू स्ट्रक्चर बता सकते हो, जैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग मतलब, में हमारी क्लासेस शुरू हो गई? जी। हाँ, क्लासेस शुरू हो जाएगी, 2 महीना हार्डकोर पढ़ाई चालू हो जाएगी, फिर प्लेसमेंट रिलेटेड ट्रेनिंग चालू हो जाएगी कि कंपनीज आएगी तो किस टाइप के सवाल पूछेगी, सीवी कैसे बनाना है, वो सब रेडी होगा। और तीसरा महीना जैसे ही खत्म हो जाएगा तो कंपनीज आना चालू होगा और आपके इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएंगे।
ठीक है सर। इसमें जो वो रहेगा, हमें कुछ बुक्स भी मिलेगी या सब चीज ऑनलाइन ही रहेगा? नोट्स मतलब मिलेंगे फिर आपको प्रैक्टिस। एप्लीकेशन के थ्रू, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और आप कुछ Got it. लेक्चर के दौरान नोट्स बना भी सकते हो। जी सर। पर 3 महीना लगातार कड़ी मेहनत करनी है पारस। सर आपने मुझे कोर्स कौन सा रिकमेंड किया है? ड्यू इन्वेस्टमेंट टू। बैंकिंग, हेज फंड और फाइनेंशियल मॉडलिंग का 25,000 में 3 सर्टिफिकेट आएंगे और जॉब मिल जाएगी। तो ओमकार सर आपको भी ब्रोशर भेजेंगे, और आप शाम तक रजिस्टर कर दीजिए 2,000 रुपये से, तो आपकी सीट बुक हो जाएगी। सर थोड़ा सा आइडिया आप दे पाओगे मॉडलिंग में क्या होता है, जैसे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में क्या होता है? देखिए कहीं ना एक्सेल कहीं पे, पढ़ा होगा लेकिन एक्सेल में कुछ पूरा हम समझ। सिखाएंगे कि जी। वैल्यूएशन कैसे करते हैं, फर्म का बैलेंस शीट कैसे डालते हैं, उसका पोर्टफोलियो एनालिसिस कैसे करेंगे, अगर जी। स्टॉक है तो कैसे करेंगे, बॉन्ड है तो कैसे करेंगे, डीसीएफएफ कैसे करेंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे करेंगे, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी कैसे करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें सिखाई जाएगी। सपोज एक कंपनी की बैलेंस शीट उठा लेंगे रिलायंस की, तो वो बैलेंस शीट कैसी है, क्यों दिख रही है, एनालाइज करेंगे वैसा, जो हमने कॉलेज तक क्या किया, सिर्फ सम टैली Yes, किया, ट्रायल बैलेंस कर करके। हाँ if you want, I can display the PDF. हाँ। तो ओमकार सर अभी आपको पीडीएफ दिखाएंगे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में क्या क्या होगा। ये पूरा कोर्स है 3 महीने का, आपको ये भेज भी देंगे। पहला मॉड्यूल में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होगा, तो इसमें मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या होता है पूरा डिटेल में आप सीखोगे। दूसरी चीज है हेज फंड का मॉड्यूल, जिसमें आप डेरिवेटिव्स वगैरह सीखोगे। फिर तीसरा मॉड्यूल है फाइनेंशियल मॉडलिंग का, जिसमें आप सीखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं एक सिंपल बिजनेस के लिए, डीप डाइव इनटू इनकम स्टेटमेंट, कुछ अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं, लाइव केस स्टडी क्या होती है, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो की टेक्निक्स क्या होती है। ये चीज बहुत ज्यादा हाई डिमांड में। इसके अलावा भी आपको कॉन्फिडेंस की और कम्युनिकेशन की जरूरत है। आप बोलोगे सर मुझे आता सब है पर मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है उसकी 15 दिन ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें ये सब सिखाया जाएगा जॉब के सामने। फिर सर पर मॉक। मेरे को एक। जी। बोलिए। सर पर मेरे को ना ये चीजें आती नहीं है कि बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहाँ तो जाती है। इसके लिए ही तो कोर्स है ना, फर्स्ट स्टेप पे बताएंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ट्रायल बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस शीट कैसे होगी, तो आप जैसे ही लोग हैं जो फ्रेशर है जिनको नहीं आता कुछ, तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जाएगा। ये बैलेंस शीट, कुछ इंजीनियर्स भी, आप तो कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आपको थोड़ा जल्दी पिक हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होगा पारस। सर मेरे को तो एंट्री नहीं आती, कहाँ डेबिट कहाँ क्रेडिट, मेरे को तो यही समझ आपने में नहीं आ रहा था। ग्रेजुएशन किस में किया? बीबीए सर। तो आपने क्या किया, पास कैसे हुए? सर वो आता है फिर वही है, 6 महीने बाद फिर साफ हो जाता है दिमाग में इक्विटी मार्केट, फिर 6 महीने बाद फिर फाइनेंशियल। सर पढ़ा मैंने सब कुछ है ये जितना चीजें हैं, लेकिन वही है कि तो वही ना, कुछ। आपका अच्छा खासा ब्रशअप हो जाएगा, और स्टेप 1 से हम आपको सिखाएंगे। आपको भरोसा जी। करना पड़ेगा। जी सर, लेकिन मेरे को वो एंट्रियां पास कराने में भी नहीं आ पाती, वो भूल जाता हूँ, हम गैप ही करवा भूल देंगे, जाता हूँ। करवा देंगे, क्या इसमें हो बोलूं ना, जाएगा। कुछ नहीं आता मेरे को सच में सर। पीएनएल कुछ भी नहीं आता मेरे को, सही बता रहा हूँ। फिर इसमें आपको डे 1 से पीएनएल क्या है, कैश फ्लो क्या है, बैलेंस शीट, कैश डे 1 से ही सिखाया जाएगा। व्हाट इज पीएनएल, व्हाट इज कैश फ्लो, व्हाट इज बैलेंस शीट, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, ये सब सिखाया जाएगा। अब नहीं सर, टेंशन मत वर्ड्स में लो। समझ में आता है, लेकिन सर रीडिंग नहीं, वेडिंग समझ में जर्नल नहीं आता एंट्रीज है। वगैरह भी, बहुत सारे जर्नल एंट्रीज का एक पूरा लिस्ट है। ठीक है, जी। एक सेकंड मेरे पास अगर रहेगा तो देखता हूँ। ओमकार तेरे पास लिस्ट नहीं है ना? कौन सी? Students who got placed. सर बेसिकली होता है क्या, एग्जाम में खाली यही पूछते हैं, व्हाट इज हैज फंड, व्हाट इज फंक्शन ऑफ हैज फंड, एप्लीकेशन ऑफ हैज फंड। ये तो सर हम लिख देते हैं सब फटाफट, वो रटा एक दिन बना दिया, लेकिन सर प्रैक्टिकली कुछ सिखाया ही नहीं हमको कि कैसे, मतलब तो कौन वही सा वही फॉर्मूला तो लगा वही के। इस कोर्स में सब कवर किया जाएगा प्रैक्टिकली, क्योंकि कैसा इसके रहता लिए है। तो जो 15 लाख में नहीं हुआ वो 25,000 में होगा। जी बस सर। इतने में तो समझ जा। और ये जो 15 लाख वाले लोगों पे, वो सब पे तू केस कर जाके कि मुझे क्यों नहीं सिखाया, क्यों नहीं पढ़ाया। पर ये कॉलेज सर वालेज कोई रिफंड कुछ देगा नहीं, सब धंधा लेके बैठे हैं। तो हाँ सर वही हमारी अभी। ट्रेनिंग कैसी लगी तुझे उस दिन? जेन्युइन लगी? सर बहुत सही लगी सर, बहुत अच्छी लगी, वरना सर मैं ऐसे। अभी तो खुल के बात कर रहा है, मुझे अच्छा लगा। तो एज अ जी। एज अ टीचर, एज अ मेंटोर मैं बोलता हूँ, इफ यू रजिस्टर, मैं स्टेप बाय स्टेप, और जैसे ही तू रजिस्टर करेगा कल या परसों, मैं ओमकार के थ्रू कुछ
बेसिक पीडीएफ और अकाउंट्स के तुझे भिजवा दूंगा, तो तेरी एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी पढ़ाई चालू हो जाएगी। जी और हमारे पास और एक सर है, तो विजय वंजारे सर, तो उनके साथ कुछ अकाउंटिंग के लेक्चर्स लगा दूंगा मैं तेरे, बेसिक्स 1-to-1 जी फ्री में मेरी तरफ से। 2 लेक्चर्स फ्री में मैं 1-to-1 विजय सर के लगा दूंगा, जहाँ पे सर मैं और तू है, वैसे ही तू और सर रहेंगे, वो एक एक एंट्रीज तुझे सिखाएंगे, वो मेरी तरफ से। सर। सर दो चीज है ना, जैसे इंश्योरेंस और एडवाइजरी है ना सर। जैसे हम्म एक कोर चीज हो गई और एक एडवाइजरी वाली चीज हो गई, है ना सर। हम्म मतलब मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ पूछ कि ना पूछ। जैसे ये चीजें हैं, जैसे बैलेंस शीट बनानी है, पीनल बनाना है, ये चीजें बनानी है, जैसे मामा भी ऐसे करते रहते हैं, वो सीए है ना, तो वो भी ये सब हम्म। चीजें करते रहते हैं। तो सर ये चीज ज्यादा सही रहेगा या इंश्योरेंस और एडवाइजरी में, जैसे हम किसी चीज को कोई चीज मतलब किसी को हम एमएनसीज में जैसे हम कोई चीज सिखा बताते हैं, जैसे कि सैप के बारे में बता रहे हैं, या फिर कोई मतलब जो हम ओरेकल के बारे में कोई चीजें बता रहे हैं किसी को, मतलब या इंश्योरेंस में कोई चीज को हम कर रहे हैं, तो सर मेरे लिए क्या चीज सही रहेगा। जैसे मैं आपकी उतना कुछ खास नहीं आता मेरे को, अब रट के तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे को वो सब दिमाग में नहीं घुस पाता सर कि कहाँ ये कौन सैप सी मतलब ऑपरेटिंग वगैरह सैप वगैरह ऑपरेटिंग सीखने की जरूरत जी सैप वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है पारस, ठीक है। जी फाइनेंस में सैप की जरूरत नहीं है, जिसको आईटी बैकग्राउंड से होते हैं वो लोग सीखते हैं, ठीक है। बेसिकली जी सबसे ज्यादा अभी आपको ये फोकस करना है दैट हाउ यू कैन लेवरेज। लेवरेज का मतलब आप कैसे फायदा उठा सकते हो कि ये 3 महीने में मैं एक्सप्लोर कैसे करता हूँ। तो वो है, आप जी फाइनेंस कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हो, आप एक्सेल सीखोगे, बेसिक अकाउंटिंग रूल सीखोगे, और अब जो भी ब्रशअप नहीं हुआ है वो पूरा ब्रशअप हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। तो तीन जी महीने में पूरा आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, या आप मेरे पे छोड़ दो। सर जो जॉब रहेगी वो पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे रहेगी, इक्विटी मार्केट में रहेगी, जैसे सर आईपीओ देखो आईपीओ ये कुछ सब मैंने भी स्टूडेंट किया, कुछ कुछ पैसा मेरे वैसा बनाया मैंने, देखो कुछ लेकिन मेरे सर स्टूडेंट है जो इक्विटी में, कुछ बॉन्ड में है, वर्ल्ड वाइड बॉन्ड में भी ट्रेडिंग होती है, कुछ कुछ जी डेरिवेटिव्स में है। तो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी वो टाइम पे कौन सी प्रोफाइल देगी। जी सर आईपीओ में सेलिंग वो सब ये सब थोड़ा बहुत मैं सेलिंग नहीं मार्केट होगा, वार्केट चलाता हूँ। मेरे जो भी रहेगा तो वो कॉल सेलिंग नहीं होगा इसमें। जी ओके इसमें सेलिंग बिल्कुल नहीं होगा। दिस वुड बी कोर फाइनेंस प्रोफाइल। अगर आपको 12 बजे की अगर जॉब रहेगी तो आप जाओगे, आप इक्विटी मार्केट के उसमें ऑपरेशंस बैक ऑफिस का काम होगा या मिडल जी ऑफिस का। ट्रेड सेटल होता है, देखो आपको पता होगा T+2 पे सेटल होता है ट्रेड, उतना तो पता होगा ना। जी 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 हाँ तो वो सब काम रहेगा। तो जैसे जैसे आप अंदर आओगे आप सीखोगे, जैसे कि आप कोर्स में आओगे तो वैसे। ठीक है सर। तो क्या करना चाहोगे? सर बिल्कुल सर, मेरे को तो चाहिए, एक्सप्लोर चाहिए। मैं मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो करना है। बस ये है कि सर मेरे को मतलब वो चाहिए कि मतलब रिजल्ट चाहिए, क्योंकि अब मैं तो सर बहुत भटक गया हूँ। बहुत चीजें कर ली नहीं मैं मैंने, समझ कुछ सकता फायदा नहीं हो पा रहा है। शेयर मार्केट में भी देख लिया मैंने, सब डाउन हूँ। हो अभी गई पर है। एक जगह पे फोकस रखना पड़ेगा पारस। तू फिर जुलाई में कोर्स ज्वाइन करेगा, फिर तू 15 जुलाई को कहीं और कुछ बातें करने लग जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। अभी जो डिसाइड करेगा वही 3 महीना दौड़ना है तुझे मेरे साथ। फिर इधर उधर नहीं देखना। फिर अर्जुन अर्जुन का काम पता है ना क्या था महाभारत में? जी सर, फोकस। हाँ बस वो चाहिए 3 महीने। ठीक है सर, मैं कर लूंगा फोकस। सर मुझे थोड़ा सा वो चाहिएगा कि एक प्रोस्पेक्टस चाहिए, जरा पापा को पिच कर पाऊँ जरा। हाँ तो मैं भेज दूंगा। भेज देगा, और पापा से अगर बात करनी होगी तो ओमकार कर लेगा। जी सर, इसके बाद कुछ होगा पक्का, क्योंकि सर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैंने इतनी नौकरियां देख ली है, इतनी देख जगह पैसे। देख 50% मेरा काम है, 50% तेरा भी काम है। ये मत समझना जी कि पैसे दे दिए तो काम हो जाएगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं सर, 25,000 रुपये में तो क्या ही आप लोगे, और क्या ही मेरे को मेरा हाँ तो कुछ वो हमें चाहिए वही कि है कि कल उठ के पारस बोले कि 15 लाख वालों ने मेरी मदद नहीं की पर 25,000 वालों ने मदद की, मुझे ये चाहिए। सर मुझे काफी अच्छा लगा आपका जो पीपीटी था ना, आपका समझाने का तरीका जो था, आपने जो जो चीजें खोली, मतलब इंश्योरेंस में भी और इसमें भी ना, हर चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा उस चीज को देख के। तब मैंने कहा हाँ, वेबिनार मेरे को ज्वाइन करने के बाद आपसे और हम लोग के बिल्कुल बात हर करनी। मंथ में 200 200 100 100 बच्चे का हम बैच करते हैं, इसलिए हम फीस कम रखते हैं। नहीं तो दूसरे कॉम्पिटिटर 1 1 लाख भी लेते हैं पर फिर प्लेसमेंट नहीं देते।
हाँ सर, ये मेरे को ऑफर और भी आए हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के और हाँ इसके सर, एमआरटी लेकिन रहेगा, ये वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ ये मेरे को बहुत सारे आए हैं सर। अभी आईएम्स ने भी ऐसे शुरू कर दिया है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कहीं से लीडरशिप कोर्स, कहीं से रोहतक, आईएम काशीपुर, ये सब यही कर रहे हैं। मैंने कहा सब टाइम पास। आईएम्स ऐसा क्यों, हाँ हाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वही मैं भी सोच रहा था। क्योंकि अभी मैंने देखा है केपीएमजी के साथ एक और ने टाई अप किया है, लेकिन फीस वही 3,20,000, तीन लाख वही पच्चीस वही हजार कुछ नहीं है, मैं नौटंकी है। तब मेरे को भी वही लगा, मैंने कहा ऐसा क्या मतलब हो गया है कि सर वही है, इन्वेस्टमेंट तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन सर वही है कि मेरे को थोड़ा सा उस तरीके से चाहिए कि मुझे, हाँ जिस चीज में मैं जाना चाह रहा हूँ उसी चीज में जाने के लिए चाहिए। ओके तो ठीक मेरे है, को तुम इसीलिए मैं पापा आपको को हर चीज खुल के पापा को। बता रहा हूँ सर। नहीं अच्छी बात है, तो तुम पापा को ब्रोशर दिखा दो, ओमकार आपको भेज देगा, और आप रात तक हमें बता दो दैट आप कब तक रजिस्टर कर पाओ, ठीक है। फिलहाल सिर्फ 2000 से रजिस्टर करना और लेक्चर्स चालू हो जाएंगे, बाकी के फीस तो बाद में पे करना, जी ठीक है। जी सर, ये एप्लीकेशन में मतलब कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन से होता है या आप कुछ टैब वैब भेजते हो? नहीं नहीं एक नहीं, एक एप्लीकेशन होता है मोबाइल में से लॉगिन करना पड़ता है। यूजर आईडी पासवर्ड हम क्रिएट करके रजिस्ट्रेशन दे करने के देंगे। बाद आ जाएगा। अगर आप चाहे तो मोबाइल से सीधा एक लिंक आएगी, वो लिंक के थ्रू लॉगिन करके आप लेक्चर अटेंड कर सकते ठीक है सर, उसके बाद एग्जाम होगा हमारा? 100 मार्क की एक एग्जाम होगी, फाइनेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट और मॉक इंटरव्यू होगा। जी सर, फाइनेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट जैसा हमारा जो आपने भेजा था वैसा ही होगा, या क्वांट रीजनिंग तो नहीं आएगी सर? LRDI ये कुछ नहीं आता मुझे, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। ये कुछ हो। वो फाइनेंस नहीं नहीं आएगा। आता मुझे। फाइनेंस की आएगी। फाइनेंस वाली जैसा आपने भेजी थी ना? यस, हाँ। उस पर और जी मेहनत सर, कराएंगे, फिर वैसी 100 मार्क की टेस्ट होगी। ठीक है सर। ओके, टेंशन मत ले, ठीक, ठीक है। चल, जी सर, बाय। ओके। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। यू कैन लीव द मीटिंग, पारस।